this is Pracheta Banik and welcome to my channel. So today we are going to discuss a new chapter, that is a chapter 2 science class 8th, namely microorganisms, friend and foe. Okay, so as suggested from the name of the chapter, microorganism. तो इधर micro, what does micro means? So micro means tiny, that is tiny or small in size, and organism means living thing. ठीक है, so what microorganism would be? So microorganism, the living thing that is small in size are known as microorganisms, है ना. Then they are friend, sometimes they are friend and sometimes they are foe. So friend means dost and foe means enemy. Okay, so you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. So these are called as microorganisms or microbes. तो जैसा आपको मैंने बताया कि microorganism वही organisms होते हैं जिसको हम नहीं देख सकते हमारे unaided या फिर naked eye से, and हमारे environment में plant और एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स है इनके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम नहीं देख सकते, जिसको हम नहीं देख सकते. सो दोज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो एंड माइक्रोब्स आर द सेम thing. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered with a grayish white patch. तो आपने रेनी सीजन में देखा होगा कि एक ब्रेड में एक ग्रेइश वाइट टाइप पैचेस आ गए हैं. ठीक है, ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. आप उन पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखो. You will see tiny black rounded structure. आपको black color के rounded structure दिखेंगे. Do you know what these structures are? आपको क्या पता है ये क्या है, ये structures क्या कौन सी चीज़ है? And where do these come from? ये कहाँ से आते हैं? So microorganisms. अभी हम लोग पढ़ेंगे microorganisms. सो एक्टिविटी दी हुई है, आप ये पढ़ के कर सकते हैं. ठीक है, ओके. So these observations shows that the water and the soil are full of tiny microorganisms, though not all of these them fall into the category of microbes. These are microorganisms. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with unaided or naked eye. So देखिए हमें और एक करेक्टर मिल गया. एक तो पता है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्मॉल इन साइज है, और अभी इस लाइन के थ्रू हमें ये भी पता चल गया कि ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विद अनएडेड और नेकेड आई. ठीक है, वी कांट सी देम जनरली विद unaided or naked eye. So some of these, such as fungus that grows on the bread, can be seen with a magnifying glass. Other cannot be seen without the help of microscope. तो बोला गया है, देखिए, we have to use a magnifying glass or a microscope to see the microorganisms as they are very small in size. ठीक है, तो कुछ थोड़े बड़े होते हैं, but we can't see them with naked eye. So we have to use the magnifying glass. ठीक है, ताकि वो थोड़ा मैग्नीफाई करके उसको हमें दिखा सके. That's why these are called microorganisms. That's why these are known as micro, that is small organisms. Small organisms are microbes. ठीक है, microorganisms are classified into 4 major groups, that are bacteria, fungi, प्रोटोजुआ एंड एल्गा. ठीक है, तो हमारी कितनी हो गई कैटेगरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की? 4. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ एंड एल्गा. ठीक है, सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन द 2.1 एंड 2.4 फिगर. सो ये देखिए, ये है बैक्टीरिया,
ये बैक्टीरिया हो गई हमारी। दैन नीचे देखते हैं, नीचे हमारी ये एल्गा हो गई जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, देन स्पायरोगाइरा, देन प्रोटोजुआ हो गई दैट इज़ अमीबा एंड पैरामीशियम। दैन फंजाई हो गई जो कि ब्रेड मोल्ड, जो हम लोगों को रेनी सीजन में ब्रेड के ऊपर हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। देन पेनिसिलिन हो गई दैट वाज यूज्ड फर्स्ट इन फॉर मेकिंग द एंटीबायोटिक्स। देन एस्परजिलस हो गया हमारा फंजाई। ठीक है, सो हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 कैटेगरी मिल गए दैट आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अमीबा। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एंड थोड़ा अलग एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये माइक्रो एम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर क्लासिफाइड इनटू 4 groups, right? Okay, so one is bacteria, one is fungi, one is protozoa and the last one is alga. ठीक है, ओके। सो ये जो बैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर है, ये सिर्फ 1 सेल से बने हुए हैं। वेयर इज़ द फंजाई इज़ मल्टीसेलुलर, प्रोटोजुआ इज़ यूनिसेलुलर एंड अगेन एल्गा इज़ अ मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कभी कभी। तो बैक्टीरिया क्या हो गया हमारा, यूनिसेलुलर, 1 सेल से बनते हैं। फंजाई क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। प्रोटोजोआ क्या हो गया हमारा, यूनिसेलुलर दैट इज़ 1 सेल, यूनी मीन्स 1 एंड मल्टी मीन्स मैनी। एंड हमारा अमीबा हो गया, सॉरी एल्गा हो गया मल्टी सेलुलर। ठीक है, ओके। तभी हम लोग अपने बुक में ही चले जाते हैं फिर से। ओके, then comes to viruses. Viruses are also microscopic but they can't be classified as the microorganisms because viruses are non-living in the outside and living inside the body of the host organisms. मतलब जो viruses है वो microscopic तो है लेकिन वो लोग microorganisms के कैटेगरी में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग नॉन लिविंग होते हैं बाहर में और लिविंग होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। होस्ट मतलब जिसके अंदर वो लोग रिप्रोड्यूस करेंगे या फिर रहेंगे या फिर सर्वाइव करेंगे, उसको होस्ट कहते हैं। तो वायरसेस होस्ट के बॉडी के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं बट बाहर नॉन लिविंग होते हैं, मतलब मर जाते हैं। दैट्स वाई दे कांट बी कॉल्ड एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव outside the body of the host. They are present in the atmosphere, they are not non-living in the outsides. ठीक है, okay. Now they however reproduce only inside the cell of the host organisms which may be a bacterium, a plant or animal. So देखिए जो viruses है वो host organism के सेल के अंदर reproduce करते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के अंदर हमारा ये वायरसेस रिप्रोड्यूस करता है। फिर प्लांट हो गया, एनिमल हो गया। देखिए मैं आपको वायरसेस के एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अभी देख लेते हैं कोरोना वायरस। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरस विच कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी ह्यूमन बीइंग, प्लांट और एन एनिमल। एंड हम लोग बोलते हैं ना कि हाथ धो लीजिए, फिर सारी जगह को मत पकड़िए। क्यों? क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई नॉन लिविंग चीज़ के ऊपर रहे भी तो वो मर जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग आउटसाइडर। ठीक है, ओके। देन एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस हो गया एक कोरोना वायरस, सेकेंड वन इज़ फ्लेवी वायरस। ठीक है, ओके। देन कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, फ्लुएंजा फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो हमें खांसी होती है, राइट, देन फ्लू होता है, कोल्ड कफ होता है, वो सब किसके वजह से होता है? वो सब वायरसेस के वजह से होता है। ठीक है, देन सीरियस डिजीजेस सच एज पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, वायरसेस जो है वो हार्मफुल भी होती है और
के वजह से, मतलब देखिए वायरसेस हार्मफुल भी होती है और वीक भी होती है। तो जो एकदम हार्मफुल बैक्टीरियाज होती है, सॉरी हार्मफुल वायरसेस होते हैं, वो डेंजरस डिजीज़ को पैदा करते हैं, जो कि पोलियो, चिकन पॉक्स जैसे डेंजरस और सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं। वेयर एज सम वायरसेस आर weak and they do not cause very serious or harmful diseases such as cold, flu, most cough are caused by the weak bacteria। ठीक है, ठीक है। So diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa, that are protozoans, whereas typhoid and TB, that is tuberculosis, are बैक्टीरियल डिजीज़। तो देखिए ये आपको याद रखनी है ना। ये पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, देन कफ हो गया, देन फ्लू हो गया, देन फीवर हो गया, वो सब कौन करता है? वायरसेस करते हैं। एंड डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। Also, typhoid and tuberculosis, that is TB, is caused by bacteria. That's why they are known as the bacterial diseases. ठीक है, okay. You have learned about some of the microorganisms in the class 6 and 7, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि देखिए ये जो फंजाई है, फंजाई तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, मतलब फंजाई एक कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। वो प्लांट जैसे दिखते हैं, ठीक है, दे आर लाइक द प्लांट, दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे आर ऑल्सो, देयर अपीयरेंस इज ऑल्सो लाइक द प्लांट, बट दीज फंजाइज आर नेदर प्लांट नॉर एनिमल। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ये देखिए हमारी बैक्टीरिया आ गई। अब मैं और एक चीज़ आपको बताती हूँ कि बैक्टीरिया जो है उसके भी कैटेगरीज होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स शेप। सो बैक्टीरिया जो है वो 4 कैटेगरीज के होते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स शेप। सो पहली है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, मैं आपको इधर पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। सो स्टेफाइलोकोकस एक हो गई, देन और एक हो गई बेसिलस, दैट इज़ लैक्टोबेसिलस, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। देन हो गई हमारी स्पाइरिलियम, ठीक है, और लास्ट वाली हो गई वाइब्रियो, ठीक है, ओके। सो ये जो स्टेफाइलोकोकस है इसका शेप कौन सा होगा आपको मैं बता देती हूँ कि इसका जो शेप है वो एकदम स्पेरिकल शेप होता है, मीन्स दे आर द सर्कल शेप्ड बैक्टीरिया एंड बेसिलस आर इन द शेप ऑफ रॉड शेप, लाइक ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं, ठीक है। एंड स्पाइरिलियम आर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया दैट आर लाइक दिस, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ओके। सो लाइक दिस, ये देखिए ऊपर से मोटे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड वाइब्रियो आर कोमा शेप्ड, मीन्स कोमार्शियल, जिसके शेप ऐसे होता है, ठीक है, ओके। सो हमने ये सब पढ़ लिया, ओके। देन वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ पर है? सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, some alga and protozoa, और multicellular such as many algas and fungi। मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल या फिर यूनिसेल्युलर होती है और प्रोटोजोआ भी, लेकिन ज़्यादातर एल्गा मल्टीसेल्युलर होती है। कुछ ही एल्गा ऐसे हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है। सो बैक्टीरिया, ठीक है, बी बैक्टीरिया एंड पी protozoa are single celled or unicellular, and fungi F and alga A are mostly मल्टीसेल्युलर, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। देन दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम ice cold climate to hot spring and deserts to marshy land। So ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे जगहों पे होती है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड climate to the hot spring, means they are found in the polar region also,
in the hot spring region also, in the wetland also, in the moisturized land also, and in the dry marshy land also. They are also found inside the body of the animals including ह्यूमन। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, जो बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये सब जो होती है वो हमारे ह्यूमन के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है वो कहाँ रहती है? ठीक है, वो ह्यूमन के अंदर भी रह सकती है, प्लांट के अंदर भी रह सकती है, एंड एनिमल के अंदर भी रह सकती है। दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द एटमोसफेयर, मीन्स वो हर जगह में मौजूद होती है। ठीक है, देन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोज ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। सो कुछ ऑर्गेनिजम्स अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म दूसरे होस्ट ऑर्गेनिजम्स के, और कुछ फ्रीली घूमते हैं। ओके, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अभी हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। ठीक है, ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, whereas some others are harmful and can cause diseases. Let us study about them in detail. So अभी हमको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी हार्मफुल ऑल्सो एंड कैन बी फ्रेंडली ऑल्सो, एंड द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर अस इन द मैनी वेज। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। ओके, सो नाउ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली भी होती है, हम लोगों को पता है। अभी हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हमें बेनिफिट कैसे करती है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। आपको क्या पता है कि जो ब्रेड होती है, ब्रेड को जब हम लोग डो के फॉर्म में रखते हैं तो उसमें ईस्ट, that is a fungi, yeast is added so that it can just increase the volume of the bread. We will read it further. ठीक है, मैं आपको जस्ट एक समरी बता रही हूँ। देन केक में भी यूज़ होता है एंड कर्ड में भी यूज़ होता है। कर्ड मतलब कर्ड फॉर्मेशन में यूज़ होता है, क्योंकि कर्ड में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क में अगर हम कर्ड को दे दें तो ये जो लैक्टोबैसिलस है वो मिल्क की शुगर को, दैट इज़ केसेन, मिल्क के प्रोटीन को, मतलब मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड। दिस लैक्टिक एसिड थिकन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द मिल्क। हम लोग इसको बाद में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है ये सालों से अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ होती आ रही है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ environment. Example, the organic waste, vegetable peels, remain of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by the bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase the soil fertility by fixing nitrogen. So देखिए हमें बहुत सारी यूजेस मिल गई है इधर ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, है ना। पहला क्या है, दे आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। नंबर 2, दे आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक्स। then they are also the cleaning agent of the environment. how? because ये जो हमारी मैन्योर है वो हमारी कहाँ से बनती है, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको कन्वर्ट करते हैं मैन्योर में। सो दे आर ऑल्सो द क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। देन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज होती है जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था राइजोबियम के बारे में पहले क्लासेस में कि ये लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होती है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके वो कन्वर्ट करती है सॉल्यूबल फॉर्म में, दैट इज़ नाइट्रेट, एंड दीज नाइट्रेट्स आर यूज्ड बाय द प्लांट। ठीक है, जो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे।
देन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, मैंने आपको बताया था कि कर्ड और ब्रेड में ईस्ट नेम्ड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ फंजाई इज़ यूज, ठीक है, हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. आई सो दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू द वार्म मिल्क टू सेट द कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. आई वंडर्ड व्हाई. तो देखिए अभी पहेली बोल रही है कि उसने अपनी मदर को थोड़ा कर्ड, थोड़ा दही वार्म मिल्क में ऐड करते हुए देखा था ताकि वह सेट हो जाए कर्ड में नेक्स्ट डे, ठीक है. तो वो सोच रही है क्यों. तो लेट्स रीड. Curd contains several microorganisms. Of these, the the bacterium lactobacillus promotes the formation of the curd. It multiplies in the milk and convert it into curd. ठीक है, मतलब lactobacillus प्रेजेंट होती है कर्ड में, जो कि मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है. हाउ, मैं आपको अभी एक डिटेल्ड में समझा देती हूँ. ओके, सो देखिए ये जो हमारी कर्ड है, कर्ड में होती है लैक्टोबैसिलस, LB लैक्टोबैसिलस, ठीक है. ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये कर्ड जब मिल्क में हम पोर करते हैं, मिल्क में, वार्म मिल्क में, तो क्या करती है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क के शुगर को कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड में, ठीक है. वो मिल्क के शुगर को कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड में. और ये जो लैक्टिक एसिड है, यह मिल्क के प्रोटीन जो कि केसिन है उसको थिक कर देता है, जो मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, ठीक है. ओके, सो bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. An important ingredient of rava, suji, idli and bhatures is curd, ठीक है. तो देखिए जो बैक्टीरिया है वह चीज़ बनाने में भी यूज़ होती है. डू यू नो द बैक्टीरिया नेम्ड रेनेट. रेनेट एक बैक्टीरिया होती है जो चीज़ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. ये जो बैक्टीरियाज है वो रवा, सूजी, इडली बनाने में, देन भटूरे बनाने में भी कर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. कैन यू गेस वाई. आपको पता है क्यों. क्योंकि बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ द राइस, इडली एंड डोसा बैटर. सो आपको पता है क्यों यूज़ किए जाते हैं रवा, इडलीज एंड भटूरेज में कर्ड. क्योंकि ये जो कर्ड है इसमें ईस्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ईस्ट मतलब बैक्टीरियाज एंड ईस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये जो इडली का जो डो होता है उसको, उसमें फर्मेंटेशन करके उसको इंक्रीज़ करता है, जैसे मैं हम लोग बाद में पढ़ेंगे. सो ये देखिए. ओके, सो जब हम लोगों ने इस मैदा में ईस्ट पाउडर मिला दिया तो व्हाट इट हैपेंड. देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया. क्यों. क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ. ओके, सो ये जो ईस्ट होती है ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, मतलब ये एनारोब्स है. आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 7 में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर्स में, एनारोब्स एंड एरोब्स, ठीक है. सो ये जो ईस्ट है ये एनारोबिक बैक्टीरिया है जो रिस्पायर करने के बाद प्रोडक्शन करता है अल्कोहल का, दैन कार्बन डाइऑक्साइड का और एनर्जी का, ठीक है. सो ये 3 चीज़ें वह प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन में. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा फॉर्म हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो हमारे जो बैटर है उसमें मतलब वो उसमें फूल जाता है, बिकॉज गैस को भरा जाता है ना, क्योंकि एज ईस्ट आर प्रेजेंट इनसाइड द बैटर, सो इट विल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एज द कार्बन डाइऑक्साइड आर जस्ट फिलिंग इन द डो, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड इस डो के अंदर फिल किए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो डो है ये फूल जाएगा, है ना. तो यही मैटर है कि क्यों ये हमारा वॉल्यूम बढ़ा देता है, ठीक है. ये देखिए इधर लिखा भी है. ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. सो बबल्स ऑफ द गैस फिल्स इन द डो एंड इंक्रीजेज वॉल्यूम, जैसा कि मैंने आपको बताया है. दिस इज द बेसिक ऑफ यूज ऑफ
yeast in the baking industries for making bread, pastries and cakes. ठीक है. ओके. देन कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो ये जो ईस्ट है, मैंने आपको जैसे बताया था कि वो जब रिस्पायर करते हैं वो क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं. एक तो है एल्कोहल का. ठीक है. फर्स्ट वन इज मैंने गलत स्पेलिंग लिखा है. ओके. सो ए फॉर एल्कोहल. देन वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. ये 3 चीज़ें वो लोग बनाते हैं. तो ये जो एल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, इस एल्कोहल को यूज़ किया जाता है. मतलब these माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट आर यूज्ड कमर्शियली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. So for these purposes, yeast are grown naturally on the natural sugar such as natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice etc. तो ये जो ईस्ट है वो क्या करते हैं, शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं एल्कोहल में. ठीक है. तो इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है. देखिए, the process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. ठीक है. Okay. Then Louis Pasteur was the first person, ये आपका बहुत ही important है, remember it. ठीक है. So Louis Pasteur was the first person who discovered the fermentation process in 1857. ठीक है. Okay. देन मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. ठीक है. ओके. देन वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट, सो कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन. ठीक है. सो द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो बोला गया है कि जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करती है, एंटीबायोटिक टैबलेट्स लेने के लिए या फिर कैप्सूल या फिर इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, ये सब लेने के लिए सजेस्ट करती है. रिमेंबर व्हाट इज़ पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज़ ऑल्सो अ फंजाई. हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है ना. ओके. देन द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं वो उसका जो सोर्स है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. आप सोचिए कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वह दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक सके या फिर उसको किल कर सके. ठीक है. ओके. सो सच these medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such medicines are called as antibiotics. ठीक है. तो हम लोगों को ये समझ में आ गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई को यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में ताकि वह डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके या फिर उनके ग्रोथ को स्टॉप कर सके. देन दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई लाइक सेप्ट्रोमाइसिन, देन टेट्रासाइलिन and erythromycin are some examples. ठीक है. सो ये देखिए, ये इनके एग्जाम्पल्स है, आप ये भी याद रखिएगा. दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, देन एरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा. ओके. Then in 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. मतलब वो एक लैब में काम कर रहे थे किसके लिए, disease causing bacterias के ऊपर. Then suddenly he found that the spores of a little green mold is one of his culture's plate. तो उन्होंने देखा कि एक ग्रीन कलर का, मैं आपको पूरा ये समझा देती हूँ. ठीक है. सो उन्होंने क्या देखा कि ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का कुछ मोल्ड जैसा बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है. ठीक है. बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है. तो
उन्होंने क्या किया, इनफैक्ट ये जो प्लांट लाइक और कुछ था, मोल्ड जैसा कुछ था, वो उसको किल भी कर रहा है, वो बैक्टीरिया को, ठीक है। तो इनफैक्ट इस ये वो किल भी कर रहा था बैक्टीरिया को, उसके ग्रोथ को स्टॉप भी कर रहा था। मतलब मोल्ड्स पेनिसिलिन कैन बी यूज टू मेक द एंटीबायोटिक्स टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो mold penicillin was prepared as an antibiotic to stop the attack of the disease causing bacteria or the microorganisms, ठीक है। ओके, ठीक है। देन कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, या कि एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब आर द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स, ये बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक्स है विच आर मेड फ्रॉम द फंजाई एंड द बैक्टीरिया। मैंने आपको बोला था कि बैक्टीरिया और फंजाई से ही स्पेशली एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किए जाते हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है, ये जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो हमारे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पहले ग्रो किए जाते हैं, फिर डिजीज़ को क्योर करने के लिए मेडिसिन के फॉर्म में उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, एज ए एंटीबायोटिक्स। देन एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द एनिमल्स। तो देखिए, हम ह्यूमन को अगर कुछ ऐसा माइक्रोबियल डिजीज़ या कुछ हार्मफुल डिजीज़ हुआ तो हम एंटीबायोटिक्स को कैसे ले सकते हैं, कैप्सूल या फिर इंजेक्शंस की तरह ले सकते हैं, राइट। तो ये एनिमल्स कैसे लेंगे, तो क्या करते हैं कि एनिमल्स के जो फूड है उसमें ये एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है, जो जिसके खाने के बाद एनिमल्स ठीक हो जाते हैं। लाइक दैट टू कंट्रोल द डिजीज ऑफ many plants, antibiotics are used by how? So these are being used by mixing these in the soil so that the plant can take the nutrient from the soil along with these medicines, ठीक है। Okay. Then it is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of the qualified doctor. तो हमें ये याद रखनी ज़रूरी होती है कि ये जो एंटीबायोटिक्स है ये डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस में ही लिया जाए, उसके अलावा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके हम उसको अगर हम कम लेंगे, हमारे हिसाब से लेंगे, तो अगर वो कम पड़ जाएगा तो हमारी अंदर जो डिजीज़ है वो क्योर नहीं हो पाएगी या फिर स्टॉप नहीं हो पाएगी। एंड इफ़ इट विल बी मोर देन क्या होगी, उसके कुछ गंदे मतलब साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। वैसे तो एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं है, लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा लेंगे तो वो हमारे लिए लेस इफ़ेक्टिव ड्रग बन जाएगा। क्योंकि जब हम लोग एक चीज़ ज़्यादा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगी। और जब हमें सचमुच ज़रूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक्स की, दैन इट विल नॉट वर्क ऑन आवर बॉडी एज आवर बॉडी made as for our body these antibiotics are less effective, ठीक है। So we should take the antibiotics from after the advice of the qualified doctors, ठीक है। Okay, also antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in our body. Antibiotics, however, are not effective against the flu as these are caused by viruses. So देखिए, as these antibiotics are made from the microorganism, they can only cure the diseases that are caused by only the microorganisms, and as the viruses are not the microorganisms, so they cannot cure the common flu that are caused by the viruses, ठीक है। Okay, then comes to vaccine. So why vaccines are there? Vaccines are there to stop the to stop or cure the disease caused by the viruses, ठीक है। Why are children, infants given vaccination? देखिए, अभी तो पेंडेमिक है, इसमें हमें कोविडशील्ड देन कोवैक्सीन दिए जाते हैं, ठीक है।
सो होते क्या है इसमें, देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ओके, सो हमारे इधर होते क्या है, होते हैं कि ये जो हमारे वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेशन में क्या होता है, जैसे कि अभी हम कोवैक्सीन ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो कोवैक्सीन में क्या होता है कि वीक कोरोना वायरस प्रेजेंट होता है। हाँ, ये चौंक आप ये सुनकर आपको चौंक करना हो जाए, आप ऐसे मतलब सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इस वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन देते हैं उसमें भी कोरोना वायरस होते हैं, लेकिन दैट वायरस आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग लाइक द रियल कोरोना वायरस, दे आर वेरी वीक। ठीक है, द कोरोना वायरस दैट आर एडेड इन द वैक्सीन आर नॉट सो इफेक्टिव और वेरी हार्मफुल, दैट्स वाई दे आर यूज। क्यों यूज़ किए जाता है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कोरोना को हमारी बॉडी में एंटर करवा दिया, तो क्या करेंगे, तो ये जो बॉडी है एज दीज आर हार्मलेस, सो हमारी बॉडी को अफेक्ट भी नहीं होगा, और अगर थोड़ा अफेक्ट करे भी तो बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ रेडी करेगा फाइट करने में। एंटीबॉडीज़ में से आप लोगों ने WBC का नाम तो सुना ही होगा, तो बॉडी क्या करते हैं, WBC का प्रोडक्शन जल्दी जल्दी करने लगते हैं ताकि दे कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज वायरसेस। तो क्या करते हैं, बॉडी कोरोना वायरस को ही स्टॉप कर देता है या फिर इस वायरस को मार देता है। ठीक है, एक बार उसने कोरोना वायरस आया था हमारे बॉडी में थ्रू वैक्सीनेशंस, तो उसको हमारी बॉडी ने मार दिया। देन क्या होगा, जब हमारे बॉडी में रियल कोरोना वायरस अगर एंटर कर जाए, तो बॉडी को तो पता है कि पहले हमारे बॉडी में कोरोना वायरस सच एज मीन्स इसके तरह ही एक वायरस घुसा था, तो हम लोग हमारी बॉडी क्या करेंगे, और ज़्यादा जल्दी जल्दी वही WBC प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे और हमारी जो रियल कोरोना वायरस है उसको मारेंगे। दैट्स वाई वैक्सीन्स आर गिवन। ठीक है, ओके, सो हम लोगों को पता चल गया वैक्सीनेशंस के कितने मतलब बेनिफिट्स क्या है, क्यों हमें वैक्सीन्स दिए जाते हैं, राइट। ओके, सो when a disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader। जैसा कि मैंने आपको कहा, जब हम लोग वैक्सीन्स के थ्रू हम लोग कोरोना वायरस को हमारी बॉडी के अंदर घुसने देते हैं, वो वीक होता है। ठीक है, रिमेंबर दैट द कोरोना वायरसेस दैट आर एडेड विद द वैक्सीन एंड गिवन इनटू द बॉडी आर लेस हार्मफुल, दे आर वीक viruses। ठीक है, and the body also remember that how to fight the microbes if it enter again। तो देखिए वैक्सीन के थ्रू तो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स घुस गए, फिर उसको हम लोगों ने मार भी दिया, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज रेडी हो गई, फिर उसको हम लोगों ने मार दिया। देन व्हाट विल हैपन कि if these type of virus will again enter our body by chance, and then what will happen कि हमारी बॉडी को पता है कि पहले ऐसे ही हमारी वायरस बॉडी में घुस गई थी, तो वो क्या करेंगे, और ज़्यादा फास्टरली वो लोग एंटीबॉडीज़ को तैयार करेंगे, दे विल प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज़ फास्टर इन द फास्टर रेट। ठीक है, सो इन दिस वे दिस विल protect the body from the viruses। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever। So this is how the vaccine works। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया with these characteristics or by these ways the vaccine helps our body to fight against the harmful viruses। ठीक है, सो हमें इसीलिए एक बार हो गया कोई वायरस, उसके बाद वही वायरस ज़्यादा नहीं होता है, और अगर हुआ भी तो भी वो हमारे बॉडी को अफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है जैसा कि पहले किया था। ओके, ठीक है, देन दिस is how the vaccine works। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination। देखिए, though the tuberculosis are caused by cholera is caused by bacteria, but
but for curing or for stopping or killing these bacterial disease also vaccinations are required. ठीक है. और देखिए smallpox, Edward Jenner was the first person who discovered the vaccine of the smallpox in 1798. It is also important, you should remember this. ठीक है. Okay. Then in our childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? तो या हम लोगों को पोलियो की वैक्सीन दी गई थी, राइट, 2 ड्रॉप्स ऑफ पोलियो, है ना. तो हमको तो ये मतलब बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हमें दी गई है ना. सो इंजेक्शंस भी दी गई है. तो इसका हम लोगों को लिस्ट बनाना है हमारे पेरेंट्स को पूछ कर. तो यू कैन डू इट इन द होम. ओके. देन it is essential to protect all the children from against this disease, so necessary vaccines are available in nearby hospital. So देखिए हमारे children's को in bacterial disease or diseases that are caused by harmful microorganisms, तो इन ये डिज़ीज़ ना हो बच्चों को, उसके लिए हम लोग उसको कुछ तो करेंगे, कुछ तो इंजेक्शंस या फिर कुछ उसका इलाज तो करेंगे, राइट. सो for these harmful diseases, the children were given the injections and some capsules like the antibiotics are given so that उनको डिजीज़ ना हो. यू माइट हैव सीन, आपको तो पता ही होगा कि पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. देन पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू द चिल्ड्रन. आपको भी दिया होगा, शायद आपके पेरेंट्स से पूछिए. अ वर्ल्ड चैम्पियन champion against smallpox has finally led to its eradication from most part of the world. ये जो हमारी smallpox है सब मतलब almost all parts of world से erode हो चुकी है, वो चली जा चुकी है ना. Okay. Then these days vaccines are made on large scale from the microorganism to protect the human and other animals from several diseases. तो आजकल वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा स्केल में बनानी शुरू हो चुकी है. क्यों? ताकि वह ह्यूमन को और एनिमल को सेवरल डिजीज़ से प्रोटेक्ट कर सके. ओके. सो अप टू दिस वी हैव कंप्लीटेड. आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए. एंड यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल देन डू सब्सक्राइब इट. टिल देन बाय बाय.